Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's down to the details. In Porvorim, Goa, Chief Minister Pramod Sawant attended the oath-taking ceremony of the newly elected Jilla Panchayat chairperson and vice chairperson at the seminar hall. Addressing the gathering, he congratulated the chairperson, vice chairperson and members of both North Goa and South Goa district panchayats, calling them great achievers. The event was also attended by Panchayat Minister Mavin Gudino, Chief Secretary Kandavallu, the Director of Panchayat and the CEOs of the both district panchayats. Good morning to all of you. आजच्या oath-taking ceremony of newly elected chairperson, vice chairperson and all the members of the North Goa and South Goa जिल्हा पंचायत. आमच्यामध्ये असतात आमचे पंचायत मिनिस्टर जे माविन गुदिनो, CS मिस्टर कंदावलू, डायरेक्टर ऑफ द पंचायत, त्याचबरोबर दोन्ही जिल्हा पंचायतीचे जे CEO. सगळ्यात पहिली तुमचे खूप खूप अभिनंदन. तुम्ही सगळेजण मोठ्या उमेदीत निवडून आयल्या लोकांनी तुमका. Good morning to all of you. आजच्या oath-taking ceremony of newly elected chairperson, vice chairperson and all the members of the North Goa and South Goa जिल्हा पंचायत. आमच्यामध्ये असतात आमचे पंचायत मिनिस्टर जे माविन गुदिनो, CS मिस्टर कंदावलू, डायरेक्टर ऑफ द पंचायत, त्याचबरोबर दोन्ही जिल्हा पंचायतीचे जे CEO. सगळ्यात पहिली तुमचे खूप खूप अभिनंदन. तुम्ही सगळेजण मोठ्या उमेदीत निवडून आले. In Patna, as the Congress prepares to launch its Manrega Bachao Abhiyan from January 5, Bihar's Panchayati Raj Minister Deepak Prakash defended the recent changes to the scheme. He stated that the modifications were introduced to strengthen Manrega by eliminating corruption and ensuring the creation of durable community assets in villages, highlighting India's vision of becoming a developed nation by 2047. Prakash emphasized that tackling corruption is essential to achieving this goal. He cited past malpractices such as the misuse of JCB machines for excavation while falsely recording laborers' attendance as examples of issues the reforms aim to address. मनरेगा में जो भी बदलाव किए गए हैं वो मनरेगा की बेहतरी के लिए किए गए हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए किए गए हैं। राष्ट्र चूँकि 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य है, विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो 2047 तक विकसित बनाने के लिए भ्रष्टाचार खत्म हो, साथ ही साथ गांव में ड्यूरेबल एसेट बने, समाज के काम आने वाले एसेट बने। JCB से मिट्टी काट के गलत प्रकार से मजदूरों की हाजिरी बना करके भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए बदलाव किए गए। कांग्रेस शुरू करने जा रही है। मनरेगा में जो भी बदलाव किए गए हैं वो मनरेगा की बेहतरी के लिए किए गए हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए किए गए हैं। राष्ट्र चूँकि 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य है, विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, 2047 तक विकसित बनाने के लिए भ्रष्टाचार खत्म हो, साथ ही साथ गांव में ड्यूरेबल एसेट बने, समाज के काम आने वाले एसेट बने। JCB से मिट्टी काट के गलत प्रकार से मजदूरों की हाजिरी बना करके भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए। In Nagpur, senior Congress leader Vijay Wadetiwar reacted to Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut's Jai Maharashtra remark by stressing that religion and politics should remain separate. Wadetiwar argued that politics must focus on development but accused the Bharatiya Janata Party of seeking votes in the name of religion instead. Drawing a sharp comparison, he likened the BJP's approach to a beggar asking for food, saying that just as some beggars invoke the name of God while seeking alms, BJP leaders are asking for votes in the name of Hindutva. He emphasized that genuine politics should be about creating policies for progress rather than relying on religious appeals. संजय राउत ने कहा मुंबई में जय श्री राम नहीं चलेगा। संजय राउत ने कहा है कि मुंबई में जय श्री राम नहीं चलेगा, जय महाराष्ट्र चलेगा। संजय राउत नहीं, देखिए, धर्म और राजनीति अलग होती है। राजनीति विकास की करनी होती है। मैं कल भी कहा था कि कल रास्ते का भिखारी पेट के लिए भीख मांगता था। आज के भारतीय जनता पक्ष की राजनीति ऐसी चल रही है, वोट के लिए भीख मांग रहे। वो भी अल्लाह के नाम से, भगवान के नाम से भीख मांगता था।
अब ये धर्म के नाम से भीख मांग रहे हैं। ये विकास की नीति होनी चाहिए। हिंदुत्व के नाम पे वोट बटोरना ये कोई विकास की नीति नहीं होती। धार्मिक ध्रुवीकरण करके वो विकास की बात करते हैं। तो वो भिखारी में और ये भिखारी में फर्क क्या है? वो भी तो पेट के लिए मांगता था, ये वोट लेकर पेट भरने का काम ये भी करते। दोनों संजय राउत ने कहा मुंबई में जय श्री राम नहीं चलेगा। संजय राउत ने कहा है कि मुंबई में जय श्री राम नहीं चलेगा, जय महाराष्ट्र चलेगा। संजय राउत नहीं, देखिए, धर्म और राजनीति अलग होती है। राजनीति विकास की करनी होती है। मैं कल भी कहा था कि कल रास्ते का भिखारी पेट के लिए भीख मांगता था। आज के भारतीय जनता पक्ष की राजनीति ऐसी चल रही है, वोट के लिए भीख मांग रहे। वो भी अल्लाह के नाम से, भगवान के नाम से भीख मांगता था, अब ये धर्म के नाम से भीख मांग रहे। ये विकास की नीति होनी चाहिए। हिंदुत्व के नाम पे वोट बटोरना ये कोई विकास की नीति नहीं होती। धार्मिक ध्रुवीकरण करके वो विकास की बात करते हैं। तो वो भिखारी में और ये भिखारी में फर्क क्या है? वो भी तो पेट के लिए मांगता था, ये वोट लेकर पेट भरने का काम। In Rameshwaram, Tamil Nadu, Union Education Minister Dharmendra Pradhan addressed the valedictory function of Kashi Tamil Sangamam 4.0 on December 30. The event marked the conclusion of the cultural and educational exchange program, highlighting the deep-rooted ties between Tamil Nadu and Kashi and emphasizing the importance of preserving and promoting India's diverse traditions. नमस्ते रामेश्वरम, नमस्ते वणकम काशी, काशिकुम रामेश्वरतुकुम इडिये उल्लू तोड़ बुर्कक रामायण से साखी KTS 4.0 निगलचियल तमिल करकलम ओरु पुदिया पदिपु महाकवि भरतियार ते मधुर तमिलेश उलगम एलम परबुम बागे सैदल बेनुडुम एंडुर सोनार आदे नमुदु भारतर प्रमदर नरेंद्र मोदी जी अबरगल काशी तमिल संगमम मूलम निरोवेट्री करुकी। नमस्ते रामेश्वरम, नमस्ते वणकम काशी, काशिकुम रामेश्वरतुकुम इडिये उल्लू तोड़ बुर्कक रामायण से साखी KTS 4.0 निगलचियल तमिल करकलम ओरु पुदिया पदिपु महाकवि भरतियार ते मधुर तमिलेश उलगम एलम परबुम बागे सैदल बेनुडुम एंडुर सोनार आदे नमुदु भारतर प्रमदर नरेंद्र मोदी जी अबरगल काशी तमिल संगमम मूलम निरोवेट्री। In Kolkata, West Bengal, BJP leader Nitish Pramanik remarked that Union Home Minister Amit Shah's recent statement on the 2026 West Bengal election was made in support of the common people of the state. Pramanik emphasized that Amit Shah's words reflected the party's commitment to addressing the concerns and aspirations of Bengal citizens. देखिए, पहली बात तो ये है गृहमंत्री जी कल अपना प्रेस मीट के दौरान लगभग दे चुका है। उसमें चाहे घुसपैठ की मुद्दा हो या फिर इस बार 2026 की चुनाव की जो रणनीति है उसका विषय हो या फिर जिस तरह से बंगाल में वेंडलिज्म चल रहा है एक सरकार के नाम से, जो लोग चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे यहाँ का आम आदमी हो, चाहे जांच हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, किसी को भी आक्रमण करने से नहीं हटते हैं। वो और कोई नहीं है, वो पश्चिम बंगाल की जो शासक दल है तृणमूल कांग्रेस। और गृहमंत्री जी ने कल अपना प्रेस मीट के दरमियान ये भी क्लियर कर दिया
कि इस बार का जो चुनाव है ये चुनाव सिर्फ बंगाल को जीतने के लिए नहीं या फिर बंगाल में सरकार प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट प्रतिष्ठित करने के लिए, बल्कि इस बार की जो 2026 के चुनाव है ये बंगाल जितना देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वता रखते हैं। In Indore, Madhya Pradesh, Minister Kailash Vijaywargiya visited the Sanjeevani Clinic in Bhagiradipura to review the arrangements. He noted that while the number of patients has decreased, people are still arriving for treatment. To ensure proper care, 4 ambulances have been deployed, and any patient requiring hospitalization will be admitted accordingly. पेशेंट की संख्या कम हुई है पर पेशेंट आ रहा है और इसीलिए हमने यहाँ पे 4 एम्बुलेंस लगा रखी है। जो भी पेशेंट ऐसा है जिसको हॉस्पिटलाइज करना है तो हम हॉस्पिटलाइज करेंगे। हमने एमवाई में एक वार्ड बना दिया है, अरविंदो में 100 बेड का वार्ड बना दिया। एक वहाँ पर 24 डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर भी 12 डॉक्टरों की टीम है एमवाई में। और आसपास के यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना चाहेगा तो उन हॉस्पिटल को भी अपने बोल दिया कि आप इनसे किसी से भी पैसे नहीं लेंगे और उचित इलाज करेंगे। हमारे कार्यकर्ता सारे हॉस्पिटल के अंदर भी खड़े हैं, वहाँ पर अगर उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ आएगी तो हमारे कार्यकर्ता उनकी मदद करेंगे। सारे हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ लोग भर्ती हैं वहाँ हमारे कार्यकर्ता हमने भिजवा दिया सुबह। तो वो सारे हॉस्पिटल में हमारे कार्यकर्ता जो मेरे से सीधे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं शाम तक जब तक 0 पेशेंट नहीं हो जाएगा भागीरथपुरा में, जब तक यही रहो। शूट तो हुई है और अभी हम इसके बारे में चर्चा करें। इससे अच्छा है कि हम पहले इसको सबको ठीक करें और इससे क्योंकि कई बार वातावरण के कारण भी लोग बीमार हो जाते हैं, तो वातावरण हम सकारात्मक करें और जो भी थोड़ा बहुत पेशेंट 0 पेशेंट हो जाए उसके बाद हम जिसकी भी गलती होगी उसको बख्शेंगे, चाहे वो किसी भी अधिकारी, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, हम बख्शेंगे। अभी मैं इसके ऊपर अभी कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि कुछ नेचुरल डेथ हुई है और कुछ इसमें भी डेथ हुई है। इसलिए हम डॉक्टर लोग सब परीक्षण कर लेंगे, प्रशासन परीक्षण कर लेगा, उसके बाद हम आंकड़े बताएंगे। और जितने भी मृतक है उनको 2-2 लाख रुपए तो माननीय मुख्यमंत्री। In Indore, Madhya Pradesh, 3 people lost their lives in the Bhagiradipura area after allegedly consuming tap water supplied from the Narmada River. Mayor Pushyamitra Bhargav expressed deep sorrow over the incident, describing it as extremely sad and unfortunate. He explained that at the first glance, the deaths appeared to be the result of contamination in the water, which had led to infections affecting residents of the locality. Bhargav emphasized that the situation was tragic, noting that the health department had officially confirmed 3 fatalities so far. He highlighted the seriousness of the issue, stressing that the contamination had directly impacted the community and required urgent attention to prevent further harm and safeguard public health. देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रथम दृष्टया पानी में कंटामिनेशन और उससे हुए इन्फेक्शन के कारण ही विशेषकर भागीरथपुरा क्षेत्र के लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। और ये बहुत दुखद है कि अभी 3 लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है, जिसकी अधिकृत जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने भी दी है। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 4 लोग और हैं जो इस बीमारी की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे थे और उनका भी निधन हुआ है। तो अधिकृत स्वास्थ्य विभाग पूरी जांच पड़ताल करके जारी करेगा। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं और प्रथम दृष्टया पानी की लाइन में ड्रेनेज मिलने से कोई एक स्थान तो निकला है, पर मुझे लगता है कि उसके अलावा भी कोई जगह हो सकती है। देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रथम दृष्टया पानी में कंटामिनेशन और उससे हुए इन्फेक्शन के कारण ही विशेषकर भागीरथपुरा क्षेत्र के लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। और ये बहुत दुखद है कि अभी 3 लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है, जिसकी अधिकृत जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने भी दी है। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 4 लोग और हैं जो इस बीमारी की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे थे और उनका भी निधन हुआ है। तो अधिकृत स्वास्थ्य विभाग पूरी जांच पड़ताल करके जारी करेगा। लेकिन
में मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं और प्रथम दृष्टया पानी की लाइन में ड्रेनेज मिलने से कोई एक स्थान तो निकला है, पर मुझे लगता है कि उसके अलावा भी कोई। In Dehradun, Uttarakhand, Chief Minister Pushkar Singh Dhami attended the appointment letter distribution program for newly recruited personnel in the police department. He expressed his happiness at seeing the newly appointed sub-inspectors and second-level fire officers present at the ceremony. In the main service hall, he conveyed his best wishes and congratulations to them and also extended greetings to their parents and the guardians, acknowledging that it was their hard work, sacrifices and values that had helped the recruits reach this important milestone. He further stated that the occasion would serve as a significant step in strengthening and making more effective the law and order, public safety and disaster management system in Uttarakhand. उपनिरीक्षक गुल नायक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों को आज में इस समारोह में आप सभी के उपस्थित होने पर सब आप मुख्य सेवक सदन में पधारे हैं। मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और साथ ही यहाँ पर उपस्थित आप सबके अभिभावकों को भी मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ अगर वो भी आए हैं, जिनके परिश्रम के कारण से, त्याग के कारण से, जिनके संस्कारों ने आप सबको जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। और मैं कह सकता हूं कि जितनी खुशी आज आप सबको हो रही होगी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर, उससे कम खुशी उनको नहीं हो रही, उससे अधिक खुशी आपके माता पिता, आपके अभिभावकों को हो रही होगी। आज का ये विशिष्ट अवसर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में, सक्षम बनाने में और उसको मजबूत करने में, उसकी दिशा के लिए भी एक At the Varkala Shivagiri Mutt pilgrimage program, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah addressed a public gathering, highlighting the contributions of a social reformer Narayana Guru. He said that Narayana Guru had dismantled injustice at its roots and that his philosophies carried a vision of a casteless, fearless and a truly human society. Siddaramaiah emphasized the enduring relevance of Guru's teachings in shaping a more equitable and inclusive social order. Shivagiri is Sri Narayan Guru, not merely as a saint but as one of India's greatest social philosophers. Narayan Guru did not seek reform within injustice, he dismantled injustice at its roots. Suffocating under the weight of caste apartheid, ritual pollution and graded inequality, Guru proclaimed a truth that remains revolutionary even today: one caste, one religion, one God for humankind. This was not a poetic statement, it was political theology, a direct challenge of Manu Smriti backed hierarchy, religious monopoly and social exclusion. Narayan Guru's philosophy embodied that what Kannada poet laureate Kuvempu later articulated as Vishwamanava, a vision of casteless, fearless and human society. Narayan Guru urged backward caste communities to establish their own temples as a counter to the restrictions and untouchability practiced by upper caste communities. He placed a mirror instead of an idol in temples to convey that divinity resides within every human being and that true worship lies in self-realism, equality and never causing harm to another. By establishing temples, schools, organizations and social movements, Narayan Guru created
counter public sphere where the oppressed could regain self-respect, knowledge and agency. Narayan Guru understood that caste survives not merely through ritual but through the systematic denial of knowledge. For him, in Thiruvananthapuram, Kerala, Chief Minister Pinarayi Vijayan, while speaking at the 93rd Shivagiri pilgrimage, highlighted the vision of social reformer Sri Narayana Guru. He said that Guru had endeavored for a casteless society, emphasizing his lifelong commitment to equality and social justice. Vijayan noted that Guru's teachings continue to inspire efforts toward building a more inclusive and harmonious community. ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ മേൽക്കോയ്മ തകർത്ത് മറ്റൊരു ജാതി വ്യവസ്ഥ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ളതായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ജാതീയതയില്ലാത്ത അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു ഗുരു ശ്രമിച്ചത്. ഇത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മ വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഗുരുവിൻ്റെ നമുക്ക് ജാതിയില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തെ ഈ ചരിത്ര വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് ഇന്നത്തെ ദേശകാല പരിസ്ഥിതിയിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിരിക്കും. ചരിത്രത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ദേശീയ തലത്തിൽ ഭരണകൂടാധികാരം തന്നെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ ഏകാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരത, ഉപസംസ്കൃതികൾ തകർക്കപ്പെടുന്നു. In Raipur, Chhattisgarh, Chief Minister Vishnu Deosai flagged off the PM Jan Mobile Medical Unit. The initiative aims to strengthen healthcare accessibility by bringing medical services directly to people, especially in remote and undeserved areas. The launch reflects the government's commitment to improving public health infrastructure and ensuring timely medical assistance for citizens across the state. से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अध्यक्ष सीजीएमएससी दीपक मस्के जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से और सचिव साहब से अनुरोध करूंगा कि समस्त साल और मोमेंटो भी साथ में दीजिए। श्री दीपक मस्के जी अध्यक्ष सीजीएमएससी से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सचिव साहब से भी अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में मैं अनुरोध कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए मैं संयुक्त संचालक प्रेमलता मैडम को आमंत्रित। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और विशेषकर अनुसूचित विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति पीबीटीजी, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहते हैं, ऐसे 5 जाति के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा और अबुझमाड़िया, और 18 जिले में रहते हैं। कुल 2100 बसाहट है इनका और मात्र 2,30,000 की इनकी आबादी है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो देश के हर वर्ग की चिंता करते हैं।
और ये पीवीटी जी के लोग तो समाज के सबसे अंतिम छोर के लोग हैं, जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक हर दृष्टिकोण से पीछे हैं। और उनके लिए नवंबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की और उनके सर्वांगीण विकास के लिए इसमें व्यवस्था है। इस योजना के माध्यम से उनकी बसाहटों Lok Sabha Speaker Om Birla emphasized that 2026 should mark a year of development, public welfare and fulfillment of people's aspirations. Speaking in Kota, he highlighted that the city's growth depends on strengthening road, rail and air connectivity, which are being actively addressed. Birla also outlined plans to make Kota slum-free and drug-free by 2026, ensuring better living conditions for the underprivileged. He stressed that crime prevention measures are underway and efforts are being made to make Kota accident-free. Additionally, the Kota Bondi Greenfield Airport is expected to be operational by 2027 with a pilot training institute planned at the existing airport, further boosting connectivity and regional development. आने वाले समय में 2026 का वर्ष जहाँ विकास का वर्ष हो, जन कल्याण का विषय हो और लोगों की अपेक्षा आकांक्षा करने का वर्ष। कोटा के अंदर विकास के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, उस सब के लिए काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में इन तीनों कनेक्टिविटी होने के साथ ही कोटा के विकास के नए आयाम मिलेंगे। कोटा के अंदर एग्रो इंडस्ट्री से संबंधित उद्योग लगाने की योजना शुरू हो चुकी है। बड़े व्यापक स्तर पर आने वाले समय एग्रो इंडस्ट्री हब बनेगी। कोटा को पर्यटक रूप से डेवलप करने के लिए यहाँ मुकंदा नेशनल पार्क और रामगढ़ नेशनल पार्क के अंदर बाघ को बड़ी संख्या में लाने का प्लान भी है। और जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, चाहे आध्यात्मिक पर्यटन स्थल, चाहे जंगल हो, चाहे जल हो, उनको भी डेवलप करने का काम किया जा रहा है। लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं, पीने का पानी, बिजली, रोड कनेक्टिविटी, आने वाले समय में 2 वर्ष के अंदर कोटा बूंदी के हर गाँव। That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.